Good day, everyone. Today we are going to discuss the topic accounting standards and IFRS. It is our way to understand the global financial reporting, how global financial reporting is done nowadays. The topic is being covered by Charu Agarwal on my channel Accounting with Charu Agarwal. First of all, let's understand what's accounting standards. We will be going with the flow. We will first understand the term what is accounting standards. Accounting standards are written policy document issued by expert accounting body or by government or other regulatory body. Means ये एक written policy document है, a set of guidelines है which is specifically issued by any expert accounting body or by government or by regulatory body. No one in common from the common public or from generally say something and it is written in the document. It is not like that. It is always been documented by the expert accounting body. So accounting standards specify how transactions and other events are to be recognized. कैसे आप recognize करें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को, उसको मेजर करें, प्रेजेंटेड करें एंड डिस्क्लोज करें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. सो बेसिकली इसमें ये चारों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, presentation and disclosure, RMPD. Representation, recognition, measurement, presentation and disclosure. All these four things are recognized, measured, presented and disclosed in the financial statements. How specifically these are applied to the financial transaction and events, and how they are recognized in the financial statements, how they are measured in the financial statements, how to present them in the financial statements, and what are the necessary things that are to be provided in the details of in the disclosure of the or in the notes to financial statements. These are very important things. So the Institute of Chartered Accounting of India, ICAI, being a premier accounting body in the country, it look upon itself the leadership role by constituting the Accounting Standard Board ASB in 1977. इंडिया में ICAI के अंडर 1977 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना, जिन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को. इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ने किए हैं लेकिन बनाए ASB ने है, जो कि एक बॉडी है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है. जो किसने बनाया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. अब समझते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर. There are two types of accounting standards: national standards and international standards. National standards are developed by individual country. हर country का अपना standard है जो उसने अपनी country में applicable कर रखा है, तो वो तो हो गया हमारा national standard. Like example, gap in the USA. यूएसए वालों ने कह रखा है कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लेवल के अभी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स नहीं है और हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा सुपीरियर है आपके स्टैंडर्ड से, तो हम अभी आपके स्टैंडर्ड्स को अप्लाई नहीं करेंगे. हमारे स्टैंडर्ड्स जैसे चल रहे हैं हम लोग उसको वैसे ही फॉलो करेंगे. सो वो तो हो गए हमारे क्या, लाइक गैप इन द यूएस गैप. इसको हम कहते हैं यूएस गैप. भी गैप हम सब लोग वैसे जानते हैं और अभी मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी. गैप आर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में क्या हुआ कि अब हर कंट्री का अपना अपना गैप था. हर कंट्री ने अपने अपने अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स बना रखे थे. अभी कुछ इस तरीके की बात हो गई कि सब लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं, जिसका जैसा मन आ रहा है वो अपने आप को वैसा प्रेजेंट कर रहा है, अपने वर्क को वैसे प्रेजेंट कर रहा है, अपने ट्रांजेक्शन को वैसे रिकॉर्ड कर रहा है. हुआ क्या है कि अब वर्ल्ड बन गया है ग्लोबल विलेज. इन्वेस्टर्स यहाँ के बैठे बैठे किसी और कंट्री में भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, किसी और कंपनी में भी करना चाह रहे हैं. सो नाउ फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग इट वाज अ वेरी टीडियस टास्क कि वो सबके अलग अलग स्टैंडर्ड्स को समझे. पहले उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या किया है, उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनाए हैं और किसी और ने किस बेसिस पे बनाए हैं. फिर वो उनको पहले तो कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद अपना सारे टूल्स करें,
लगाएं, एनालिसिस करें, तो वो डिसीजन मेकिंग बहुत टफ हो रही थी। इसलिए ये कोशिश करी गई कि क्योंकि अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ रही हैं, इसलिए कोशिश की जाए कि कोई एक ऐसे स्टैंडर्ड्स डेवलप कर दिए जाएं जो कि ग्लोबल यूज़ के लिए हों, जिसमें ये सारी प्रॉब्लम्स ना हमें फेस करनी पड़े और कोई भी इन्वेस्टर कहीं से भी एक रैशनल डिसीजन मेकिंग ले पाए, क्योंकि सब सारी कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बेस होके बने, सो दैट कि ये डिसीजन मेकिंग जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए, रैशनल हो जाए, सब लोग आसानी से इस डिसीजन को ले पाए। सो अब बिगिन करते हैं अब टर्म व्हाट इज गैप। गैप क्या है? गैप स्टैंड्स फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये। गैप इज अ कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। स्टैंडर्ड भी हैं इसमें, प्रिंसिपल्स भी हैं और प्रोसीजर्स भी हैं, दैट कंपनीज यूज टू कंप्लीट कंपाइल इन द कंपाइलेशन ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके ऊपर बेस करके कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती है। सो इट डिस्क्लोज सर्टेन सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। गैप अप्रूव्ड है और ये सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन अपने प्रोवाइड करते हैं किसको? डिसीजन मेकर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। वाई ऑर्गेनाइजेशन यूज गैप? गैप क्यों यूज करते थे? क्योंकि ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर देते थे उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इनटू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, समराइज कर देते थे देयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनीवन रीडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मल्टीपल कंपनीज हैज अ रीजनेबल बेसिस फॉर कंपैरिजन, since all companies using gap have created their financial statement using the same set of rules। तो बहुत सारी कंपनीज में कंपैरेबिलिटी हो जाती थी, जिनने भी अपनी स्टेटमेंट्स गैप के बेसिस पे बनाई हैं उन कंपनी के तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप आपस में कंपेयर कर ही सकते थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली बात, इन्होंने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया। By employing accounting standards, investors' interests are ensured as the documents they review are definitely accurate and genuine। जो ये रिपोर्ट इनके बेसिस पे बनती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे बनती है, वो एक्यूरेट होती है और जेन्युइन होती है, ये बात तो तय है, और जिसकी वजह से जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उनके पास एक ट्रू और एक्यूरेट पिक्चर पहुंचती है कंपनी की परफॉर्मेंस की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन द बिजनेस। It is having regulatory compliance. Government regulators set accounting standards that have to be followed by all companies. This is both beneficial to the investor or business owner as well as to the customers or clients because it protects from frauds in the business। इससे फ्रॉड से भी बचा जा सकता है क्योंकि सबके सब सारे ट्रांजेक्शंस को एक ही तरीके से रिकॉर्ड करेंगे और जब बार बार वो चेक होते हैं, प्रोसेस से गुजरते हैं, तो कहीं कोई फ्रॉड हो रहा हो, एरर हो रही हो, तो वो चेक हो जाती है। सो ये हर एक के पार्ट पे, चाहे वो ओनर हो, इन्वेस्टर हो या कस्टमर हो, किसी सबके पार्ट पे ये बेनिफिशियल है। असेसिंग बिजनेस परफॉर्मेंस। द यूज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल एनेबल अ बिजनेस टू सी और असेस इट्स परफॉर्मेंस विद अदर कंपनीज और कॉम्पिटिटर्स। हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस किसी और कंपनी की अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ इजीली कंपेयर कर सकते हैं। इट फर्दर हेल्प्स अ बिजनेस टू सी इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। By also comparing past and current performances, a business can assess the success in their strategies। इसके बेसिस पे हम कुछ बेटर स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं जिससे कि हमारे जितने भी पास्ट परफॉर्मेंसेस है उससे बेटर हम करंट में परफॉर्म कर सकें या फ्यूचर में परफॉर्म कर सकें, और इसके लिए सक्सेस स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारी हेल्प करते हैं। गैप इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल। ये सबको पता है कि गैप प्रिंसिपल बेस्ड है। They dictate to the accountants what items should be recognized in the financial statements, which amount should be reported, how these items and amounts should be displayed। बहुत क्लियर रूल्स ये देते हैं, प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें कौन सी ट्रांजैक्शन को, कौन से आइटम को रिकॉग्नाइज करना है, जगह देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसका कितना अमाउंट रिपोर्ट करना है, उस आइटम्स को कहाँ पे और कैसे डिस्प्ले करना है, और उसके रिगार्डिंग क्या क्या डिस्क्लोजर अपने रीडर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देना है। सो दिस ऑल बेसिक इंस्ट्रक्शंस, guidelines are provided by the GAP। When policymakers have to decide on monetary policy and government budgeting, gap reporting
helps them with all data they need. जब पॉलिसी मेकर्स को या गवर्नमेंट को अपना बजट बनाना होता है तो वो ये जो गैप के बेस पे जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो उसको सारा नेसेसरी इनपुट रॉ मटेरियल वहां से प्रोवाइड कर देते हैं. It breaks down complex financial numbers and makes it easily understandable for lenders, donors and other stakeholders. बहुत कॉम्प्लेक्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो थोड़ी इजी करके गैप प्रोवाइड करता है और जिससे कि लैंडर्स को, डोनर्स को या इन्वेस्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को ये अपने डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस उनकी ईजी हो जाती है कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है उस पर्टिकुलर कंपनी में या नहीं करना, कितने टाइम पीरियड के लिए करना है, कितना अमाउंट उन्हें वहाँ अपना इन्वेस्ट करना है. ये सारे डिसीजंस लेने व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन गैप, ये सारी प्रोसेसेस काफी हद तक ईजी हो जाती है. अब नाउ व्हाट इज आईएफआरएस? जब गैप था तो आईएफआरएस की क्या जरूरत पड़ गई? पहले ही बताया है मैंने आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैं इसका आंसर आपको देके चुकी हूँ कि गैप क्या था. नेशन वाइड था, नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था. धीरे धीरे हमें नीड अराइज हुई कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो ग्लोबली एक जैसी अकाउंटिंग करवाए सारी ही कंपनी से, क्योंकि आज की डेट में सब मल्टीनेशनल कंपनीज है. तो इसलिए नीड पड़ी किसकी? आईएफआरएस की. तो आईएफआरएस इज शॉर्ट फॉर्म फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. आईएफआरएस इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म है. IFRS is the international accounting framework which to properly organize and report financial information. ये properly organize करती है और report करती है किसको? Financial information को. It is derived from the pronouncements of the London-based International Accounting Standard Board. लंदन में बेस्ड एक अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है IASB. उन्होंने इसको प्रोनाउंस किया था जब से ये IFRS बने हैं. सो इट इज करेंटली द रिक्वायर्ड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क इन मोर देन 120 कंट्रीज. इस समय ये 120 कंट्रीज में से ज्यादा में अप्लाई हो चुका है. सब लोग IFRS को फॉलो कर रहे हैं. IFRS requires businesses to report their financial results and financial position using the same rules. This means that barring any fraudulent manipulation, there is considerable uniformity in the financial reporting of all the businesses using IFRS, which makes it easier to compare and contrast their financial results. The formation of international standards enables investors, government and organizations to compare various financial statements supported by IFRS with greater ease. IFRS was established in order to have a common accounting language, so business and accounts can be understood from company to company and country to country. सबके लिए सेट एक कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज बन जाए सो दैट कि वहां पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसको अंडरस्टैंड करने में, चाहे एक कंपनी से आप दूसरी कंपनी की समझ लीजिए या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे पहुंच जाइए. बट अकाउंटिंग लैंग्वेज, द बेस ऑफ मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी दी सेम. हिस्ट्री पढ़ लेते हैं थोड़ी सी IFRS की कि कैसे कैसे ये बनी है. 1973 फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी वाज देयर. IASC बनी थी, ठीक है, जिन्होंने IAS दिए थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए थे इन्होंने. 2001 में IASC रिकंस्ट्रक्ट हुई है टू फॉर्म IASB. इसी कमिटी का दोबारा से दूसरा नाम बन गया क्या? IASB. ठीक है. अब IASB जब से आई है 2001 से, तब से इन्होंने देने स्टार्ट कर दिए थे हमें IFRS. इन्होंने कहा कि हम IAS सीरीज दें क्योंकि अब हमारी एग्जिस्टेंस है तो हम चाहते हैं कि जो वर्क हम कर रहे हैं वो नोटिफाई हो, नोटिस हो, इसलिए हम चाहते हैं कि हम IAS ना बनाएं, हम कुछ और स्टैंडर्ड्स का नाम रखें. तो इन्होंने नाम दे दिया उसी को IFRS. IAS इन्होंने बंद नहीं किए, उसमें कुछ चेंजेस के साथ साथ ये IFRS बनाते जा रहे हैं. IAS भी कंटिन्यूड है और IFRS भी चल रहे हैं. जो न्यू बनते जा रहे हैं वो IFRS है. धीरे धीरे पुरानों में चेंजेस होकर उसमें न्यू थिंग्स इंक्लूड करी जा रही है. 2005 में क्या हुआ है कि IFRS became mandatory for listed companies in the European Union. तो IFRS को जो भी कंपनीज अपने आप को यूरोपियन यूनियन में लिस्ट करवाना चाह रही हैं उनको IFRS के ऊपर बेस करके ही अपने अकाउंट्स बनाने हैं. की प्रिंसिपल्स ऑफ IFRS क्या है, किस बेसिस पे IFRS बनाए गए हैं? सबसे पहला है इसमें एक्यूरल बेसिस.
Financial statement should reflect transaction when they occur, not when cash is exchanged. जब कैश एक्सचेंज हुआ है तब ट्रांजैक्शन अकर नहीं मानी जाएगी. ट्रांजैक्शन तब अकर मानी जाएगी जिस डेट पे आप उस ट्रांजैक्शन में इनकर हुए हो, चाहे भले ही आपने कैश एक्सचेंज किया है या नहीं किया है. Going concern assumes that the entity will continue to operate for the foreseeable future. फ्यूचर में आगे तक वो रन करेगी. Consistency, use of the same accounting policies from one period to another. आप अपनी accounting policies जिस भी बेस पे आप accounting कर रहे हैं वो बार बार frequently change नहीं करेंगे. It will keep on in the same manner. मेजर IFRS स्टैंडर्ड्स हमारे कुछ ऐसे हैं. यहाँ केवल मैं इनको अभी नेम इनके यहाँ डिस्क्लोज कर रही हूँ. इनकी डिटेल हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. IFRS 1, it is first time adoption of IFRS. IFRS 9 is related to financial instruments. IFRS 15 is related to revenue from contracts with customers. IFRS 16 deals with leases and IFRS 17 deals with insurance contracts. Now let's discuss what are the differences between IFRS and Indian GAAP. IFRS एंड इंडियन गैप. इंडिया के भी अपने नेशनल स्टैंडर्ड्स थे. पहले जब गैप इंटरनेशनल लेवल पे बना था तो इंडिया वालों ने भी अपना गैप बनाया था. तो अब IFRS में और गैप में क्या डिफरेंस है? वैल्यूएशन एट फेयर प्राइस, ये हमारा टाइटल है जिसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. IFRS रिक्वायर्स टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू. IFRS कहता है कि आप जितना भी वैल्यूएशन करें वो फेयर वैल्यू पे करें कि आज की डेट में मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है. बट इंडियन गैप वैल्यूज इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन. इंडियन में जो वैल्यूएशन होता था वो होता था कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन पे होता था. ट्रू स्टेटमेंट अप्रोच, separate statement for profit and loss and other comprehensive income is required to be made in IFRS. While a consolidated PL statement containing details of other comprehensive income is made in Indian GAAP. Two statement approach है. Separate statement for profit and loss and comprehensive income is required to be made in IFRS. While consolidated P&L दोनों को एक साथ मिलाकर बनती है हमारे इंडियन गैप में, और वहां पे ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग बनती है. कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. Classification of expenses, IFRS requires function wise classification of expenses while Indian GAAP allows only nature wise. वहां function wise classification होता है या nature wise classification होता है. Classification of a non-current asset, IFRS prescribes the conditions for classification of non-current asset as held for sale, while as per Indian GAAP, non-current asset cannot be classified as held for sale if the entity intends to sell it in a distant future. पहली बात तो ये हमारे अलाउड ही नहीं है कि आप कोई एसेट अपने यहाँ शो करें और जिसको आप फर्दर इन फ्यूचर कभी सेल कर पाए. हम हमेशा ये मानते हैं कि एसेट अगर किसी कंपनी ने परचेज करी है तो वो अपने पर्सनल यूज के लिए करी है, अपने बिजनेस यूज के लिए करी है. वहां पे आप इस एसेट को सेल इजीली कर सकते हैं. सो बार्गेन परचेज गेन और कैपिटलिज्म, IFRS requires that bargain purchase gain arising on business combination to be recognized in profit or loss as income. अगर आपको बार्गेन से कोई परचेज गेन, आपकी कैपिटल बढ़ रही है, आपने बार्गेन से बचाया है पैसे, तो वो आपको रिकॉग्नाइज करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस में एज योर इनकम. व्हाइल इंडियन गैप रिक्वायर्स सच रिकॉग्निशन टू बी एक्यूमुलेटेड इन इक्विटी. जबकि वो यहाँ कहा जाता है कि आप इसे अपनी इक्विटी स्टेटमेंट में शो करें, ना कि P&L में. सो ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर मैं आपको बताऊं तो IFRS और गैप में क्या है, तो प्रिंसिपल बेस्ड वर्सेस रूल बेस्ड. IFRS इज मोर प्रिंसिपल बेस्ड व्हाइल गैप इज मोर रूल बेस्ड. गैप में रूल है, वहां पे प्रिंसिपल है. रेवेन्यू रिकॉग्निशन, डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू. दोनों के रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया डिफरेंट है. मेजरमेंट ऑफ एसेट्स, IFRS अलाउज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स जबकि गैप टिपिकली डज नॉट. कैप नहीं इसको रिकॉग्नाइज करता कि आप रिवैल्यूएशन करिए एसेट्स का. अब सारी कंपनीज क्यों आगे बढ़ी? व्हाई दे आर फॉलोइंग IFRS?
First of all, it reduces the cost of preparing the financial statement using different set of accounting standards. अलग अलग set of accounting standards के basis पे बार बार financial statements को बनाने में cost ज़्यादा आती है, वो चीज़ ना हो, इसलिए एक ही बार में जो चीज़ internationally acceptable है IFRS के basis पे बनाइए और अपनी company की cost को कम करिए. To develop better understanding of financial statements worldwide, which increase the confidence among the people as investors from whole world, जिससे कि सबको आसानी से समझ में आए और सारे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आपकी कंपनी में बढ़ जाए. Adoption of IFRS will result in high quality, transparent and comparable financial statements that are based on modern accounting principles and concepts that are being applied in global market. ठीक है, आप हाई क्वालिटी दे पाते हैं, क्वालिटी पे आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऊपर लोगों का ट्रस्ट बन जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है आपकी सारी इंफॉर्मेशन और कंपैरेबल हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट दैट आर एप्लीकेबल और एक्नॉलेजेबल वर्ल्ड वाइड. If a company uses IFRS, the company could enjoy the benefit of raising capital from abroad. अगर कंपनी ने IFRS के बेसिस पे किया है तो हो सकता है यहाँ बैठे बैठे कोई और इन्वेस्टर किसी और कंट्री में वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो तो आपको इंटरनेशनल कैपिटल मिल जाएगी सो इजीली. कंपैरिजन इज मेड इजियर विद अ फॉरेन कॉम्पिटिटर. आप अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को किसी फॉरेन कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर कर सकते हैं इफ अ कंपनी प्रेजेंट्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू IFRS. The adoption of IFRS will improve cost, broader investment by enhancing comparability of financial statements prepared anywhere in the world. अब किसी भी बॉर्डर में किसी भी कंट्री की उसमें देख लीजिए, किसी से भी अपने डेटा को कंपेयर कर लीजिए. अगर आप IFRS बेस करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो आप किसी से भी अपनी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हैं. For national regulatory bodies, it brings about a higher and improved standard of financial disclosure. It also brings about better ability to attract and monitor listings in the foreign companies. आपको easily listing भी मिल जाती है. So बहुत बेनिफिट्स हैं IFRS के जिसमें से कुछ मेजर मैंने यहाँ कोट किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल एक्सेप्टेंस, फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, improved comparability, easier for investors to compare financial statement across borders, and enhanced transparency, provides clearer financial information to stakeholders. It provides clear financial information to the stakeholders. अब क्योंकि ये बहुत ड्रास्टिक चेंज था, बहुत सारी चेंजेस आए हैं इसमें, तो अब चैलेंजेस और इम्प्लीमेंटेशन में इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं. सबसे पहली बात तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ गई. कॉस्ट एसोसिएटेड विद ट्रांजैक्शनिंग फ्रॉम लोकल गैप टू IFRS. सबको सिखाना बनाना बताना कि क्यों ये चेंज इम्पोर्टेंट है. ऑल दिस प्रोसेसेस रिक्वायर्स एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉस्ट. Complexity. Some IFRS standards can be complex and require significant judgment. कुछ IFRS स्टैंडर्ड को कैसे बनाना है, कैसे कोट करना है वो कॉम्प्लेक्स था और बहुत ज़्यादा उसमें जजमेंट की ज़रूरत थी, सिग्निफिकेंट जजमेंट की ज़रूरत थी. ट्रेनिंग नीड्स, नीड फॉर ट्रेनिंग फॉर अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स. इसके बाद सबको ट्रेन करना था कि कैसे वो IFRS को अप्लाई कर पाएंगे, कैसे करना है उन्हें ये काम. So IFRS adoption is being done worldwide. Countries using IFRS, list of countries that have adopted IFRS are like European countries, Australia, Canada. Countries not using IFRS are very few, very limited. Briefly mention of countries still using local GAAP like USA. Future of IFRS is that there is ongoing developments which are going on, continuous updates and improvements to the IFRS standards. Sustainability reporting में IFRS का अपना रोल है. It increasing the focus on integrating sustainability into financial reporting. Financial reporting में ये लोग sustainability लाने की कोशिश कर रहे हैं. ये future है IFRS का. Thank you. That's it for today. Do watch for my new videos. Thank you. Thank you all.